Hello students, today we are going to read statistical tool used in economic analysis. So in previous video we had read about the statistic in economic analysis, we had read about the imperial analysis and quantitative analysis. Now we will read about the statistical tool used in economic analysis. So, economic plays important role in statistic and they closely interrelated with each other. According to Tugwell, the science of economics is becoming statistical by its methods. This is verified by this statement of Professor Marshall. Statistics are the straw out of which I, like any other economist, have had to make bricks. So, statistical data and statistical method are used for the resolution of problem associated with production, consumption, distribution, exchange, etc. in economics. Modern and strengthened statistical method are used in analysis for cost, production and consumption function. तो स्टैटिस्टिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू हम लोग जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम हम लोग पहले भी देख चुके हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एक्सेट्रा से रिलेटेड होते हैं. और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन फंक्शन इनसे रिलेटेड होते हैं. तो स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा जाते हैं. Just as various equipments and machines are used in industrial organization, exactly in the same way, various statistical methods and implements are used in the economic sector. So, statistical methods are those processes which are used in collection, organization, summarization, analysis, interpretation and presentation of statistical fact. So, here are some important statistical tools which are used to solve the economic problem, that is time series analysis, index number, demand analysis and forecasting techniques. First of all, we are going to read about the time series analysis. So, time series analysis is of immense importance in economic analysis. In the study of price, production and consumption of goods, money in circulation, bank deposit and clearing, sales in shop, etc. So, time series analysis में हम किन चीज़ों को देखते हैं? Study of prices, production, consumption of goods, money circulation, etc. Time series analysis is of special significance in the quantitative and objective evaluation of effect of various factors, the study variables. Under time series analysis, we estimate the incidence of the future by comparing the current data with the data of past. तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम कैसे वर्कआउट करते हैं? हम डाटा कलेक्ट करते हैं, करंट डाटा का जो है कंपैरिजन हम करते हैं, पास्ट में क्या हुआ था उसके थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं कि इंसिडेंट्स का कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. इन ब्रीफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजेस इन इकोनॉमिक फैक्ट, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड प्रेडिक्शन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द फ्यूचर ऑन द बेसिस. तो टाइम सीरीज स्टडीज़ के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में और इंटरप्रिटेशन की जो भी हमारे पास डाटा अब आ रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसका इवैल्यूएशन करके फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है इंडेक्स नंबर. इंडेक्स विच आर ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Index number is also known as the economic barometer. Such range or average of number which exhibit the relative change taking place in a particular time period.
Just as an atmospheric barometer tells about the air pressure and makes weather forecast possible, in the same way, not only the analysis of present economic condition can be done through the indexes associated with the prices of goods, industrial and agricultural production, national income, etc. But also prediction regarding the future economic trends can be done on their basis. On the basis of these index, we are able to know whether there exist in condition of inflation or deflation in the country. The government forms economic policies on the basis of analysis of facts such as what rate changes are taking place in the life sustenance expenditure of a consumer, what is the effect of the 5-year plans on the common standard of living. तो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक बैरोमीटर कहलाते हैं. जैसे एयर प्रेशर मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर होता है जो हमें एयर प्रेशर के बारे में जानकारी देता है और वेदर फोरकास्ट पॉसिबल होता है, वैसे ही इंडेक्स नंबर के थ्रू हम हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान सकते हैं. आगे जो प्राइस ऑफ गुड्स या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन या नेशनल इनकम क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी इंडेक्स नंबर के थ्रू मिल जाती है. और गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग करती है वो ये इंडेक्स नंबर का ही एनालिसिस करके आगे अपनी प्लानिंग बनाती है कि किस तरीके से अपने जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने पहले से प्री डिटरमाइन किए हैं उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द डिमांड एनालिसिस. Under this, economic study of market data is done in order to determine the relationship between the following: between the price and demand of given goods and between the price of a good and its production, that is its supply. तो डिमांड एनालिसिस के थ्रू भी हम मार्केट डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर लेते हैं. तो किस चीज के बारे में रिलेशन दिखाया है? बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड, कि किसी चीज की कीमत कितनी है और उस चीज की डिमांड कितनी है. साथ ही साथ दूसरी चीज है प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स प्रोडक्शन मीन्स सप्लाई. तो प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, इनके रिलेशनशिप को अगर हम सही तरीके से स्टडी करें तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा टूल होता है इकोनॉमिक एनालिसिस करने का. नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स. अंडर दिस द टेंडेंसी लाइन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम क्लास एंड इकोनॉमिक प्रेडिक्शन इज डन. तो यहाँ पे बेसिस किसको लिया है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम क्लास एंड इकोनॉमिक प्रेडिक्शन. तो इसके थ्रू फोरकास्टिंग टेक्निक कि पहले से हम पता फोरकास्ट कर लेते हैं कि आगे जाके क्या कंडीशन बन सकती है. अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड, computation, direction, tabulation, diagrammatic and graphical presentation, statistical averaging, regression, disparity, correlation, dispersion, quantitative relationship, external and internal calculation, theory of possibility, analysis of variance, etc. are also important tools of statistic which are used in economic analysis. So there are 4 major tools to analysis the economic data, that is time series. टाइम सीरीज में हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट और पास्ट के डाटा का कंपैरिजन करके हम कई तरह के इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं. इंडेक्स नंबर्स के थ्रू अभी कैसी कंडीशन है उसके बारे में जानकारी करके आगे के हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करती है. इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट वन इज डिमांड एनालिसिस. तो इसमें हमने देखा प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई
इनके रिलेशनशिप की अगर स्टडी कर लें तो हमारे कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग टेक्निक। तो फोरकास्टिंग टेक्निक में टेंडेंसी लाइन को कैलकुलेट करके हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे और मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। So first limitation is statistic performs the study of numerical facts only and not of quantitative qualitative facts। तो स्टैटिस्टिक में जो भी स्टडी की जाएगी वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स यानी नंबर्स पे होगी, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, बट उसमें क्वालिटी की बात कहीं भी नहीं की जा सकती है। Therefore, the fact that population of India has increased too much in the past few years, or the standard of living of resident of Indore has increased as compared to previous few years, does not come under statistic. In the same way, other such type of facts which cannot be expressed numerically like skills, honesty, behavior remain out of the scope of study of statistic। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमने क्या देखा कि स्टैटिस्टिक में केवल नंबर न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी की जा सकती है। क्वालिटी जैसे यहाँ पे दिया है स्किल, ऑनेस्टी, बिहेवियर, इनके बारे में स्टडी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक परफॉर्म द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड नॉट इंडिविजुअल यूनिट। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले ही देखा था कि स्टैटिस्टिक में स्टडी ऑफ एग्रीगेट, कोई सिंगल नंबर, सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, इसके थ्रू हम किसी भी तरह का रिजल्ट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एग्रीगेट की स्टडी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, द मंथली वेजेस ऑफ 3 वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री is ₹2,500-200 respectively, which averages is ₹900. Therefore, the result into the conclusion that the income of the worker is enough while it is not so। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि 3 वर्कर्स हैं, तो एक को 2,000 रुपीज पर मंथ मिल रही है सैलरी, एक को 500 मिल रहा है, एक को 200 मिल रहा है। लेकिन अगर हम 3 वर्कर्स की एवरेज इनकम निकालें, मंथली इनकम, तो वो ₹900 पर मंथ निकल रहा है। लेकिन अगर हम पर्सनली देखें तो ऐसा तो इनके साथ नहीं है, इसको बहुत कम मिल रहा है, इसको भी एवरेज से एक्चुअल में कम मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड लिमिटेशन जो दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक परफॉर्म द स्टडी ऑफ एग्रीगेट नॉट इंडिविजुअल यूनिट, तो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आता है। थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन बिकम अनट्रू एंड इलुसिव ड्यू टू लैक ऑफ रेफरेंस। तो अगर आप प्रॉपर रेफरेंस नहीं दोगे कि ये डाटा किस पर्टिकुलर रीजन के लिए है, तो उसके जो रेफरेंस अपीयर टू बी करेक्ट, बट in fact they are wrong. Example, there are 2 factories A and B. Since the last 4 years, profit of factory A is 1,000, 800, 400, 200 respectively, and profit of factory B is 200, 400, 800 and 1,000 respectively। तो आप यहाँ पे देखें कि फैक्ट्री A और B है, इसका प्रॉफिट 1000, 800, 400, 200 यानी धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि बी के अगर प्रॉफिट 4 इयर्स के देखे तो पहले ईयर में 200 था, फिर नेक्स्ट में 400, फिर 800, फिर 1000 हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट काउंट करें तो दोनों ही फैक्ट्री के प्रॉफिट जो है वो हमें इक्वल दिखेगा, वो 600 दिखेगा। लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या है कि ये डिक्रीजिंग कंडीशन में है और ये इंक्रीजिंग कंडीशन में है। देयरफॉर कंसिडरिंग द फैक्ट
as correct without a reference would be a mistake. तो अगर हम कंडीशन की बात ऐसे करेंगे तो ये फैक्ट जो है, फैक्ट के थ्रू हम देखते हैं कि ये तो गलत है, गड़बड़ हो रही है. नेक्स्ट वन इज it is essential for the statistical data to be homogeneous. तो जो भी डाटा हम यूज कर रहे हैं किसी स्टडी करने के लिए वो होमोजीनियस होने चाहिए, यानी एक से होने चाहिए. दे शुड बी कलेक्टेड इन द सेम मैनर एंड देयर नेचर शुड बी आइडेंटिकल. Conclusion obtained from the condition contrary to this would be misleading. अगर आप अलग अलग जगह से अलग अलग कंडीशन में किसी स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा. इसलिए लिमिट दी हुई है कि स्टैटिस्टिकल डाटा होमोजीनियस होने चाहिए. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल आर ट्रू ओनली इन द लॉन्ग रन एंड इन एवरेज फॉर्म. तो स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल जो है वो लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए बोले या एवरेज के, हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जब तक एग्रीगेट या एवरेज की बात नहीं होगी तो स्टैटिस्टिक वो किसी काम का नहीं होगा. एंड ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो नॉट consistent, universal and popular like the principle of natural sciences. तो नेचुरल साइंसेस की तरह ये हमेशा हर समय एक से नहीं बने रहते, ये चेंजेस इसमें होते रहते हैं. नेक्स्ट इज ओनली एन एक्सपर्ट कैन यूज स्टैटिस्टिकल मेथड इन द राइट वे. तो जो एक्सपर्ट पर्सन होंगे वही सही मेथड को यूटिलाइज करके, सही एनालिसिस करके रिजल्ट या कंक्लूजन दे सकते हैं. अदरवाइज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है और साथ ही ये इनकरेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक इज मेयरली ए मीन्स. फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक is only one of those methods. It is important to examine the conclusion obtained by the use of statistical method with other method. In fact, statistic is merely a means and not an end. तो statistic के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन करने की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम उनको सॉल्व करें. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये मीन्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम का एंड नहीं है. हमें उसके लिए फिर आगे जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है तो हम उसको किस तरीके से दूर करें, उसके लिए हमें अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो अभी हमने लिमिटेशन पढ़ा. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक. तो कुछ लोग स्टैटिस्टिक पे किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं करते हैं. वो कहते हैं इन देयर ओपिनियन डाटा आर द स्ट्रिप ऑफ फॉल्सहुड. स्टैटिस्टिक इज ए रेनबो ऑफ लाइज, यानी झूठों का रेनबो है, झूठ है. Disraeli said there are 3 degrees of lies, that is lies, white lies and data. तो इन्होंने कहा ये झूठ, सफेद झूठ और नंबर्स, डाटा, ये 3 तरह के 3 टाइप्स के लाइज कहे जाते हैं. तो कुछ लोग जो डाटा पे डिस्ट्रस्ट करते हैं उनके मेन रीजंस हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज व्हेन डाटा इज कलेक्टेड विदाउट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एक्विटेंस इट अपियर्स टू बी मिसलीडिंग. तो अगर हम डाटा बिना प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के कलेक्ट करते हैं तो वो मिसलीड करता है. बाय द नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इट इज डिफिकल्ट टू असेस whether they are absolutely correct or
नॉट। तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन अगर देखते हैं तो इससे हमें असेसमेंट करना मुश्किल होता है कि ये सही है या गलत है। Common people do not have the knowledge of statistical method in the beginning. They assume the data to be correct, and later when they come to know that the actual condition is different from this, then they start distrusting it. तो नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल जिसके पास नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक के बारे में, शुरू में वो एज्यूम करते हैं कि ये डाटा सभी कलेक्ट है, लेकिन जब वो एक्चुअल कंडीशन में आते हैं तो डाटा पे डिस्ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। ड्यू टू नेग्लेक्टिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक सच एज डाटा विदाउट रेफरेंस इज मीनिंगलेस, statistical conclusion do not apply on individual unit etc. The conclusion thus obtained are misleading, and due to this distrust arises in the context to statistical data. तो अगर हमने अभी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था, लिमिटेशंस की जानकारी अगर डाटा कलेक्ट करते समय नहीं हो तो कई तरह के डिस्ट्रस्ट उस समय अराइज होते हैं। Sometimes the data is purposely misused by the statistician and incorrect conclusions are drawn. In this way, it can said that the reason of distrust toward statistic data is the ignorance of the individual and their misuse in statistics. तो अगर सही तरीके से स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज नहीं किया जा रहा है स्टैटिस्टिशियन या के द्वारा, तो उस कंडीशन में प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। तो जरूरी इस समय ये है कि हम प्रॉपर वे में स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करें और उनके थ्रू सही कंक्लूजन निकालें। ओनली देन एप्रोप्रिएट कंक्लूजन विल बी ऑब्टेन्ड एंड द डिसइल्यूशन रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स विल बी एलिमिनेटेड।